Hi everyone, welcome back to Just Conversations with Fahim B. Today I'm doing this podcast on behalf of Loins Den, which has a collaboration with Just Conversations with Fahim B. Loins Den is going to be a show that is an investment platform for all the young entrepreneurs out there. And today we have a privilege to be speaking to one of the investors, Mr. Deepak Sangvi. He is the founder of Nylon. I'm sure you must have heard of this company called Nylon. So thank you for doing this. Thank you really for doing this. Thank you, Fahim, for having me here. Pleasure. It's a pleasure to be here. So now there is bunch of things that I can talk to you about. Perhaps you are the personality that when I had a back room conversation with you as well, you are this fearless character who just speaks his heart out and is so blunt and honest that there is a lot of segment to talk about. But I want to talk about how you started your company, how you joined it. Just tell us a little bit about yourself. So, I was 24. I just had returned from my IMA program. And just after 4 months, I lost my father. I am the only son between two brothers. So, I had no other choice but to get entered into the business. So, that's where I entered. I was 24 years, and the business that came to me was roughly about 8 crore in top line. Today, we are roughly touching 500 crore in top line. We are India's largest pickle business, largest ginger garlic paste business, largest candied fruit business. So, exciting journey. Exactly. You see, this is where I want to talk to you about the fact that you said कि मैंने 8 crore पे company ली जी. and then I raised it to 500 CR. What was that journey like? What was the key point where you were like, हाँ, this is what was missing, the piece of the puzzle that was missing. I put it together and that's it. It solved everything. सो मेरा मानना है कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दो ही फंडामेंटल चीज़ें होती है. एक होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, और दूसरा होता है आपके साथ कैसे लोग काम करते हैं. दीज आर दी फंडामेंटल टू बिल्डिंग ब्लॉक्स. इसके बाद एक हम बात कर ले स्ट्रैटेजी, चौथा बात कर ले एग्जीक्यूशन. सो गेटिंग द राइट people, right culture was the first two things that we got. Right people, right culture will slowly get into the right strategy and the right execution. Right. तो ये हमारी जर्नी थी. तो जब मैं एंटर किया तो कंपनी में जो लोगों के साथ मैं काम कर रहा था, जो फादर के साथ थे, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो अच्छे थे लोग, लेकिन जहाँ मेरी विजन थी उसके साथ शायद से अलाइन नहीं थे. तो मुझे जिस प्रकार से जिस जर्नी पे जाना था, आई स्टार्टेड गेटिंग दोज पीपल. वैसे लोग जुड़े और वहाँ से एक अलग एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन में आई. एक अलग दीवानगी जिसको बोल रहे, बिकॉज एक शुरुआती दौर होता है जब कंपनी को 1 से 20 पे ले जाना है, तो उसमें दीवानगी के अलावा और कुछ नहीं काम करता. तो एक जिसको हम बोलते हैं जुनूनी तरीके से काम करना होता है. तो वैसे जुनूनी लोग जुड़े और मेरे ख्याल में पहले 9 साल में हम 8 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंच गए. That's such a huge number, right? Right. It's easy to say, Right. but when you really execute such numbers, life changes. Absolutely. Life changes. So, your essential philosophy to everything is कि आपके लिए टीम सब कुछ है. हाँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले टीम से भी पहले कल्चर आता है. क्योंकि आप एक अच्छा कल्चर अगर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देते तो अच्छे लोग आप ले भी आएंगे लेकिन वो एनवायरनमेंट में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट कल्चर आता है और उसके बाद आप अच्छा कल्चर दो तो अपने आप अच्छे लोग जुड़ेंगे और वो परफॉर्म भी कर पाएंगे. What is good culture to you? सी कल्चर इज़ वेयर, मेरा जो मानना है कि वेयर परफॉर्मेंस हैपन्स, राइट. सो मेरा एक निलॉन्स में मैं हर दिन एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, सर्फ एक्सेल कहता है डाक अच्छे हैं. तो इसका सिंपल मतलब है कि फेलियर इज़ ओके, हम हार सकते हैं, राइट. तो अलाउइंग पीपल टू फेल इज़ अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ निलॉन्स. एक पार्ट ऑफ कल्चर है कि आई विल गो बियॉन्ड माई कॉल ऑफ ड्यूटी, कि मैं 9 से 6 में काम नहीं करता. मैं कंपनी का, एक होता है कि ओनरशिप माइंडसेट और एक होता है कि आप एक्चुअली वो एनवायरनमेंट दे दो कि आदमी फील करे मैं ओनर हूँ. तो एक होता है कि आपने उसको फ्रीडम दिया, बट दैट इज़ नॉट ओनरशिप माइंडसेट. वो एक्चुअली लिटरली फील करे कि मैं ही मालिक हूँ. एक सिंपल एग्जांपल है कि उसी के एरिया से किसी ने कंप्लेंट करके बोला कि सर यहाँ तकलीफ आ रही है, हम जवाब दे ठीक है मैं देखता हूँ. दूसरा है आप उनसे बात कर लीजिए, उस एरिया के सीईओ वही है, वही ओनर है, वही देखेंगे. तो वो जो एक अप्रोच देना जहाँ पीपल फील दैट दे आर देमसेल्फ द ओनर, दे लिटरली फील दैट, ये एक इंग्रेडिएंट है. ऐसे कुछ और इंग्रेडिएंट है वेयर
क्रॉस फंक्शनल, सब लोग आए, बात करें आपस में, देर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट है वो राइट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के राइट नहीं है वो राइट नहीं है। ये अप्रोच के साथ जब हम काम करें तो ये सारे एस्पेक्ट्स कल्चर के होते हैं। So, but sir, I want to talk about this a little bit. That you, when you sort of get into the fact of, when you say culture, you mean you have to be driven. You have to let people take the control. When you give them the control, you have to let them handle it. Right. But it is also very scary at the same time, क्योंकि when you put your trust onto somebody to handle it, that insecurity comes somewhere कि नहीं मैं एक बार जाके देखूँ सही हो रहा है कि नहीं. Have you controlled that insecurity or it never happened to you? सो व्हेन यू सो वो इनसिक्योरिटी नॉर्मली आई नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, बिकॉज एक वो एनवायरनमेंट रखा था जो ओपन डिस्कशन का था, तो हम किसी को चैलेंज कर सकते हैं और कोई मुझे चैलेंज कर सकता है। ये एनवायरनमेंट चैलेंजिंग ईच अदर फ्रॉम बोथ साइड वाज ऑलवेज देयर। Right. और जैसे मैंने कहा कि कोई राइट कोई रॉन्ग नहीं है, जो कंपनी के लिए राइट है वो राइट है। ये जब अप्रोच आप रखेंगे तो वी ऑलवेज गेट इनटू अ राइट कन्वर्सेशन रादर देन रॉन्ग राइट कन्वर्सेशन। तो उस समय जब आप वो फ्रीडम दे सकते हैं लोगों को, एंड अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें तो ह्यूमन नेचर का जो फंडामेंटल फर्स्ट बिलीफ है वो है आई हैव टू बी फ्री। फ्रीडम इज़ द फर्स्ट थिंग दैट अ ह्यूमन लुक्स फॉर। आपने अगर वो फ्रीडम दे दिया ना, तो फिर वो अपना यूनिक कैरेक्टर टेबल पे लेके आते हैं और उस कैरेक्टर से कंपनी बनती है। So as you said, you believe in culture, है ना? So I want to talk about this. So we get into the part of you joining Lloyds Den because I want to get to this point because I feel like I want to understand your philosophy behind how you will invest into startups. But let's just take the segment of Lloyds Den first, okay? Okay. So what was your decision to join Lloyds Den? मुझे ऐसा लगा कि जहाँ आज इंडियन एनवायरनमेंट है और इस एनवायरनमेंट में एक फंडामेंटल गैप था। आज से 25 साल पहले अगर हम चले जाए, जब मैं बड़ा हो रहा था, आई एम अ 90s किड, Yeah. तो उस समय था कि लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज था। तो फियर ऑफ फेलियर वॉज द बिगेस्ट टाबू दैट इंडिया हैड। किसी का दिवाला निकल गया तो पूरा सोसाइटी मोहल्ला बोलता था इनका दिवाला निकल गया, और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता था। आज इंडिया लास्ट 7-8 साल में इस मुकाम पे आके पहुंचा है जहां लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहां फेलियर इज़ नॉट अ टाबू एनी मोर। Yeah. यू कैन एक्सपेरिमेंट, और इस चीज़ का हिस्सा होने का एक हमें मौका मिला है। दैट्स द फंडामेंटल फर्स्ट पॉइंट। हाउएवर फियर ऑफ फेलियर हटाने के बाद भी यू रिक्वायर गाइडेंस। आपने सिर्फ बोल दिया कि चलो आपका लिए मैदान खुला है, जैसा खेलना है खेल लो, तो उसमें यू विल स्टिल एंड अप क्रिएटिंग सिग्निफिकेंटली मोर लॉसेज, सिग्निफिकेंटली मोर फेलियर्स। तो हमने जो अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि अगर आज मुझे आप बोलेंगे तो शायद से 10 कागज़ में अपने फेलियर स्टोरी के लिख दूंगा और 2 कागज़ शायद से सक्सेस स्टोरी के लिख पाऊंगा। तो उस जर्नी से मैं खुद गया हूँ जहाँ हज़ारों मिस्टेक्स की है, और वो मिस्टेक से जो सीखा है उसका गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो Always. तो ये एक जगह है जहाँ लायंस डेंस में मौका है, वेयर देर आर यंग पीपल कमिंग, मे बी दे आर मोर एस्पिरेशनल, दे आर मोर ब्रिलियंट देन मी, दे हैव मोर एनर्जी देन मी, दे हैव मोर डिफरेंट पर्सपेक्टिव देन मी। Yeah. आई ब्रिंग सम मनी एंड आई ब्रिंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट, क्योंकि मैं मानता हूँ क्या करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना, वो जानना ज़रूरी है। Always. तो क्या नहीं करना है वो समझते हैं, तो इसका एक कॉम्बिनेशन है। तो वी कैन डू समथिंग फैंटास्टिक इज़ व्हाट आई बिलीव। What are the sectors that you would like to invest into? आई हैव ऑलवेज बीन अ कंज्यूमर फेसिंग पर्सन। मैं कंज्यूमर माइंडसेट को बहुत अच्छे से समझा हूँ इतने साल से काम करने में। तो एनी इंडस्ट्री जिसको हम बोल रहे हैं B2C हो या B2B2C हो, जहाँ पे हम अल्टीमेटली कंज्यूमर को डील कर रहे हैं, उस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट रहेगा। दैट्स द एरिया वेयर, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ वैल्यू ऐड जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो जहाँ मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर सकता क्योंकि वो फील्ड में बहुत अच्छे से नहीं समझता, तो उन जगह नहीं जाऊँगा। मैं कंज्यूमर सेंट्रिसिटी को बहुत अच्छे से समझता हूँ। दैट्स द एरिया आई वुड वांट टू इन्वेस्ट इन। So you're open to B2C more. What will be your ticket size usually? आप क्या अमाउंट पे इन्वेस्ट करेंगे? टिकट साइज़ का अपर साइड कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, बट मेरा ये हमेशा मानना है कि यू स्टार्ट स्मॉल, यू इन्वेस्ट एक अमाउंट से, और वहाँ से जैसे जैसे परफॉर्मेंस आता है, बिकॉज मैंने ये भी देखा है कि जब अनलिमिटेड पैसा हो Oh, तो dangerous. तो अनलिमिटेड पैसा हो तो आप एक ऐसा भी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हो जहाँ आदमी ज़्यादा गलती कर लेता है। Always. तो अ टाइटर रिसोर्स ऑलवेज, एक मेरा फंडामेंटल मानना है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन अ प्रमोटर हैज़ टू मेक इज़ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और वहाँ ही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है।
बिकॉज काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो आपने रैंडमली रॉन्ग एलोकेशंस किए हैं. तो मेरा मानना है कि स्टार्ट विथ सर्टन एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. अगर वो डिसीजन राइट होंगे, सो टुडे मनी इज़ अनलिमिटेड. आज मनी लोग बोलते हैं इज़ अ कमोडिटी. आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो आपको पैसा देने के लिए 100 लोग हैं. तो मेरा टिकट साइज़ का अपर एंड नहीं है, बट ऑलवेज एक राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज स्टार्ट किया जाए और वहाँ से बिल्ड किया जाए इज़ द अप्रोच. Got it. Sir, you said about the fact that how I completely believe in the fact that if you have a lot of money, you go so loose that ये आ गया तो इसको भी साइन कर दिया, वो आ गया तो वो भी जी. करते हैं, because you want to sort of grow then fast, and obviously you make horrible mistakes. That I understand. But I also remember you and me had a back conversation in the dressing room where you also told me that talking about your other half, you said that she is my reed ki haddi, which is like the best thing I heard. Then I asked you, what do you believe? What is your fundamental belief into that? You told me that a woman can run a house for 5,000 rupees if she wants to, and that is the best part about that. So, what is your belief into women entrepreneurs, and how do you sort of believe in the allocation? Do women do better allocation of money, or what's your fundamental? आई belief in बिलीव that? सो. आई बिलीव दैट फंडामेंटली एटलीस्ट बिटवीन मी एंड माई वाइफ, और मैंने काफ़ी कपल्स में ऐसा देखा है कि द मेन आर सिग्निफिकेंटली मोर मैक्रो एंड विमेन आर सिग्निफिकेंटली मोर माइक्रो, एंड दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन टू हैव. इफ़ यू व्हेन माइक्रो विल पॉइंट यू आउट ना, आपको एक बार बुरा लगेगा क्योंकि आपने वैसे उस दिशा में सोचा ही नहीं था, एंड व्हेन दे आर पॉइंटिंग आउट, बट अगर आप समझ लो कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स ले आ रहे हैं टेबल पे, देन यू फील इट्स समथिंग ऑसम टू हैव एज अ पार्टनर. Always. So macro and micro is a great combination to have. So women bring a lot of micro on the table. And all businesses में strategy या 10 step आगे देखना is important. बट उसको एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करना, उसके अंदर वेस्टफुल खर्चे ना करना आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हेंस आई बिलीव दैट women entrepreneurs, and there are a lot of successful stories now about from women entrepreneurs जो they are class act in execution. So you will be looking forward Absolutely. towards that as well. Got it. I think we covered on to the Loins Den part now. I would want to talk a little bit about how the approach was from the founders towards you. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था लॉइंस देन की फाउंडिंग? लाइक जो मैं आपको थोड़ी बैकड्रॉप स्टोरी बताता हूँ. मैंने पहले भी बोला ये कि जब हिरेन और सावन जो इसके फाउंडर्स हैं, जब उन्होंने ये बोला था कि ऐसे लॉइंस देन खड़ा करना है, एंड लाइक साउंडेड लाइक अ ड्रीम टू मी. बट देन जिस हिसाब से इन लोगों ने किया ना, एंड वी आर ऑल हेयर नाउ, एंड फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन. आई मीन, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज़ कि they are so cool and calm when things happen like this, because Right. they don't take stress. Right. And that's the best part. They get things done on a very calm surface. So that was my experience with them. But what was your reason with them as well to say yes? I mean, I understand the philosophy that you gave behind why you want to help entrepreneurs. That's okay. But what was your reason to join specifically this show? See, I also there is some personal reason also. So I believe that this show is also big for the investors. When we get an opportunity to be part of such large show on national level, कहीं ना कहीं हम एक ओवरऑल लार्जर स्कीम ऑफ थिंक में भी एक डेंट इन द यूनिवर्स का मौका मिलता है. सो दैट्स अ पर्सनल ग्रेटिफिकेशन फॉर अस. एंड वर्किंग विद हिरेन भाई एंड सावन भाई इज, एज यू राइटली सेड, दे आर वेरी कूल चिल. एंड स्टार्टअप का शो है, तो स्टार्टअप में वो फंडामेंटल नीड है कि कूल चिल रहना ज़रूरी है, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर लर्निंग. स्टार्टअप का फंडामेंटल पॉइंट है नथिंग कम्स आउट फुल्ली फॉर्म्ड. Yeah. It evolves, right? Yeah. So I believe with them the show has also evolved, the way we started and the step by step it is building. Obviously. It is evolving. So it's fun because maybe जो आज शार्क टैंक है वो एक US से borrowed शो है, वहाँ से वो इंडिया में आया, बट दिस इज़ आवर ओन होम ग्राउंड शो. एंड जो मोदी जी बोलते हैं मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया, तो ये वैसा शो है जो मेड फॉर इंडिया एंड मेड इन इंडिया है. So it is interesting. It has been an interesting journey so far. Perfect. I really hope that you guys have a lot of fun on the sets, because this is going to be a first experience to us. Absolutely. going on the set. So are you nervous? Are you excited? I'm excited. Never nervous. Okay. Okay. Well, I can see you're really, like, when you came in and sat, you feel like you're sitting with someone who
I would like to say who has seen it all, but you don't give those vibes out there because you give the vibes that I'm still learning. ठीक है यार, you might come sit with me. बिल्कुल. Probably I'll learn something from you. बिल्कुल. You learn something from me, which is the best part. But I want to take a little bit of a detour. Having such a large company now, so many people that work for you, work with you, and so many distributors. You guys are everywhere. Perhaps I might have your product in my fridge even this second, and also I just saw it in the buffet of my hotel in the morning. So that's so cool. And when they were giving it, I was like, dude, I'm just having a podcast with this guy. Right. So whoever was sitting next to me. So it comes with a lot of stress as well, like I'm sure. I mean, a lot of people say, हाँ ठीक है, we're taking a pause, but it does come up with a lot of expectations, a lot of people to handle. How do you de-stress yourself? For me, my work is my de-stressor. I am a hardcore workaholic, right? मुझे अगर स्ट्रेस आता है, ऐसा कह ही नहीं सकते कि स्ट्रेस नहीं आता है, और कोई चीज़ का स्ट्रेस आता है ना, और 5 मिनट में मैं किसी और काम के इसमें एंगेज हो गया, तो वो स्ट्रेस कहाँ है वो भूल जाता है. एंड दैट हैज़ बीन, आई गेस, सिंपल, मतलब कोई ज्ञान नहीं है, बट ये सिंपल है कि काम का इतना नशा है कि काम में वापस घुस जाओ तो स्ट्रेस क्या था वो अपने आप भूल जाते हैं, और वहाँ से सोल्यूशन अपने आप इमर्ज होने लग जाते हैं. सो मैनी अ टाइम द आंसर टू स्ट्रेस इज गेटिंग इन एक्शन. बिकॉज जितना सोचोगे वो स्ट्रेस आपको वहीं रहेगा, तो यू गेट इन द एक्शन एंड अपने आप सोल्यूशन इमर्ज होते हैं. I want you to, I'll ask you one question and then we'll end this. But because this is how I end my podcast, is I leave at something where people keep wondering. So if Deepak has to forget one thing in his life right now, what would that be? Forget one thing in my life. Or if Deepak has to unlearn one thing in his life. I believe जो फॉरगेट करने वाली बात करें तो बहुत सारी गलतियां की है, और जो कभी कभी वो गलतियां याद आती तो ऐसा लगता है कि नहीं किए होते तो आज कहीं और आगे होते, बट उन्हीं से सीख के आगे बढ़े. बट सम ऑफ द थिंग्स विच आई शुड हैव डन एट द राइट टाइम, आई मे बी डिड इट 4 years 5 years लेटर. तो वो चीज़ कभी कभी खलती है. कभी कुछ जो डिफ़िकल्ट मोमेंट्स आते हैं तो सोचते हैं कि उसका रूट वहाँ था. सो दोज आर द थिंग्स. बट अनलर्निंग की अगर बात करें तो स्पेसिफिक सोचना पड़ेगा, बट एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, बिकॉज आई गेस एवरी लर्निंग हैज़ एक्चुअली बिल्ड ओवर थिंग्स. आई वॉज नॉट अ वेरी असर्टिव पर्सन, बट आई हैव बिल्ड माई सेल्फ टू बी असर्टिव पर्सन कॉन्शियसली. तो ये सारी अनलर्निंग करके रीलर्निंग हुई है वहाँ से उस दिशा में. So just one thing, it just quickly came in my mind, and then I'll let you go. I know, like, we sort of had relatively. I would rather sit with you some other time when this show is over, and we'll have a good conversation about your personal life. And there, I'll make this business thing out of you and talk some personal stuff. But here, I wanna end on this fact that why do you believe in India? So, 3-4 things fundamental. For bringing any bigger change, you require aspiration. Yeah. To fulfill that aspiration, you require energy. Yeah. That energy and aspiration requires environment. India is at that point where you have the youngest population of the world today is in India. तो आपके पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है, और जितना आदमी यंग होता है उतना ज़्यादा एस्पिरेशनल होता है. जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा एस्पिरेशन खत्म हो जाता है. यूथ से एनर्जी भी आती है. और जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग क्या कहेंगे, इस कंसेप्ट से इंडिया निकल चुका है. वो एनवायरनमेंट मिल चुका है कि लोग क्या कहेंगे, इट डजंट मैटर्स, मुझे करना है. तो सो दिस इज वेयर इट इज. Perfect. Thanks for doing this. Thank you for taking out time, coming here and just shooting with us, because we really thought that it's very important for people to know your journey as well. Because at the end of the day, when an investor comes on board, a founder gives out a part of his company, it's like a baby you give out. So they have to be very cautious about who they pick. So we just try to get out something from you that these people will see and they'll love. Thank you so much for doing this. Thank you. Thank you. Loins Den is coming on Jio Cinema. Thank you. One more try. One of the healthiest things that I have learned in my life is never to take anything personal. It's so fun to make these investors say one more time.